हाय बच्चों. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग मैथ्स क्लास 8th का फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, rational numbers. Okay, so we'll start with the definition. Now, what are rational numbers? See, we have came across many types of numbers so far. हमने नेचुरल नंबर से शुरुआत की थी जब हम लोअर स्टैंडर्ड्स में मैथ्स के नंबर्स सीखे थे. उसके बाद होल नंबर इंट्रोड्यूस हुआ. देन वी केम टू नो अबाउट सम नेगेटिव नंबर्स विच इज इंटीजर्स. And then we moved on to the parts of numbers. These are fractions. And now we have to deal with another category which is new to us, is called rational numbers. So now we are going to define rational number. What is the definition of rational number? See, rational number is basically collection of numbers wherein you can have natural number also, whole numbers also, all the integers also, and all this in fractional form. The representation of all these numbers in fractional forms. Let's see. So if I write 2, then is 2 my rational number? Yes, it is a rational number. If I write minus 3, is that a rational number? Yes, it is a rational number. 0, yes. And what if I write 4 by 5? Yes, this is also a rational number. Okay, minus 7 by 9. Yes, this is also a rational number. So all these are rational numbers. Okay, so now question arises how to define. Let's define. Rational number is basically a number that can be represented in P by Q form. Now what do you mean by P by Q form? P by Q का मतलब होता है there is a numerator and beneath it there is a denominator. It is a fractional way of representing any number, right? So it is P by Q form जिसमें P is numerator, Q is denominator. अच्छा, and then P and Q both belongs to integers. This is a sign of belonging. सो P एंड Q दोनों Z सेट में बिलोंग करते हैं. Z मतलब इंटीजर्स, एक ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर्स जिसमें सिर्फ इंटीजर्स है जिसे आप Z से डिनोट करते हैं, या आप कुछ बुक्स उसे I से भी डिनोट करती हैं. तो Z या I से जो नंबर्स डिनोट किए जाते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं या फिर जीरो होता है या फिर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, दोज आर इंटीजर्स. एंड सो P एंड Q वो दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं. P इंडिपेंडेंटली इंटीजर हो सकता है, Q भी इंडिपेंडेंटली इंटीजर हो सकता है. बस एक चीज इसमें है कि Q जो है वो जीरो नहीं हो सकता. Q है हमारा डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो बिकॉज इफ डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी जीरो देन वैल्यू ऑफ एंटायर टर्म विल गेट टू इंफिनिटी. सो दैट इज टू बी अवॉइडेड. हमें इनफाइनाइट तक नहीं जाना है. हम सिर्फ एक फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं जिसमें एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा. दोनों में से कोई भी इंटीजर या दोनों इंटीजर हो सकते हैं. दोनों की साइन या तो प्लस या तो माइनस हो सकती है, एक की प्लस एक की माइनस हो सकती है. एंड Q जो है वो जीरो नहीं हो सकता, वो जीरो नहीं हो सकता. P जीरो हो सकता है. आप याद रखिए कि अगर मेरा न्यूमरेटर जीरो है और चाहे मैं डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लूं, चाहे 7 लूं या 17 लूं या 175 लूं या 10 लूं या 2 लूं, whatever number I take, the value will automatically becomes 0. So if numerator is 0, then value of my number becomes 0. So this is okay. But if I take a number where I have 2 upon 0, then what? This 2 upon 0 will lead to infinity, right? It is like this. Infinitely ये चलता रहेगा because this is termed as not defined. इसका कोई logical definition नहीं है. You cannot practically do this. So this is not defined, and that's the reason it is termed as infinity. Now ये चीजें हमें समझ में आ गई
तो इसलिए अब हमें पता लग रहा है कि Q0 क्यों नहीं होगा. अगर Q0 है तो then we are going to infinity. So here we are going to talk about only rational numbers. So this Q is not equal to 0 is important to be remembered. And about on this, there is one very important thing, a term called coprimes. See, this is though introduced in the textbooks, but there are some deviations. So coprime का मतलब तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसको बुक में अभी आपके स्टैंडर्ड में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है. मैं समझाती हूँ कैसे. देखिए, कोप्राइम्स का मतलब होता है वो दो नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो. वो दो नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो. फॉर एग्जाम्पल 2/3. क्या आप 2 और 3 में कोई और कॉमन फैक्टर पाएंगे 1 के अलावा? नहीं. सो 2 और 3 आर कोप्राइम्स. I can say 5 and 7. Both are coprimes. अरे 5 and 7 क्यों? 5 and 6 also coprime. Okay, 5 and 4 also coprime. Right? Whatever, I mean 8 and 9 coprime because there are no common factors between these two numbers. So P and Q जब आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे वो कोप्राइम होना जरूरी है. कोप्राइम का मतलब कि उनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है एंड दैट इज 1. उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. इन शॉर्ट, जिसे आप काट नहीं सकते हैं. मैं इसमें कुछ भी कट नहीं कर सकती हूँ. अगर मैं कट कर सकती हूँ तो याद रखिए वो प्योर रैशनल नंबर नहीं है. दे आर टर्म्ड एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. लेट्स से एक एग्जांपल लेके देखते हैं. अगर मैं 2/3, ये एक फ्रैक्शन के तौर पे देखिए, ये हमने लोअर स्टैंडर्ड में किया है. 2/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. इसका मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना चाहूं से, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करूं, देन आई हैव 20/30. राइट? नाउ यू सी, इन माय 20/30, 10 is a common factor. So I can very easily reduce the number by dividing numerator and denominator both by 10. देखिए, इसको मैं 10 करूंगी, ये हमारा 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और इसको भी मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो ये हो जाएगा 3. So 20/30 is equivalent rational number and not a pure rational number. But 2/3, my answer, final answer, where there is no common factor other than 1, becomes rational numbers. Right? I hope this is clear. It's very simple. Okay, so this was definition of rational numbers. अच्छा, अब आपकी बुक में, हालांकि 8th स्टैंडर्ड में अगर आप 20/30 लिखेंगे तो it is going to be considered as rational number for 8th standard. It is okay. बुक में कोप्राइम की डेफिनेशन भी है. एक एक्सप्लेनेशन के बाद आपको ये बोला गया है कि हाँ ठीक है, 20/30 is also a rational number. Okay? Alright. Let's move on to examples. Examples जैसे हमने अभी देख लिए हैं. So let us see how to find out rational numbers between any two given numbers. So let's say I have been given 2/3 and 4/5. तो इनके बीच में मैं कैसे रैशनल नंबर ढूंढूंगी? देखिए, रैशनल नंबर ढूंढने के कुछ 2-3 मेथड्स हैं. आपको सारे मेथड्स आने जरूरी नहीं है. सो वी विल पिक द मोस्ट इजीएस्ट मेथड. राइट? नाउ इसमें फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज वी हैव टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर्स. डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज करना जरूरी है. नाउ व्हाई टू इक्वलाइज डिनोमिनेटर्स? सी, जब तक आप डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज नहीं करेंगे आप उनकी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं. किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए उसे एक यूनिट, एक प्लेन प्लेटफॉर्म पे दोनों को आना जरूरी है. अगर आप बाजार जाके कोई चीज खरीदते हैं, आप एक जगह एप्पल का भाव पूछ रहे हैं, दूसरी जगह आप बनाना का पूछ रहे हैं, दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं अगर आप अलग अलग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं या आपके मेजरमेंट के यूनिट्स अलग अलग हैं. बनाना आप दर्जन में काउंट कर रहे हैं, इसको एप्पल को आप किलो में काउंट कर रहे हैं, तो भी आप उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते. आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है. तो आपको या तो उसको भी डजन में काउंट करना पड़ेगा या तो इसको आपको किलो में काउंट करना पड़ेगा. दैट्स हाउ इट इज. आपको हमेशा एक प्लेटफॉर्म पे किसी भी चीज को लाकर कंपैरिजन करनी चाहिए.
राइट। इसलिए जब इस तरह के नंबर्स होते हैं, या हमने बचपन में जब कंपेयर हम करते थे ग्रेटर देन और लेसर देन, उस वक्त भी हम एलसीएम निकालते थे। एलसीएम क्यों निकाला जाता है? एलसीएम को निकालने का रीजन क्या है? एलसीएम इसीलिए निकालते हैं ताकि आपके डिनोमिनेटर्स इक्वलाइज हो जाए, वो दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन जाए। अगर वो दोनों लाइक फ्रैक्शंस है तो हमें आसानी से समझ में आता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सेम हियर, यहां हमें इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो पहला चीज हम ये करेंगे कि एलसीएम की मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से एलसीएम फाइंड करके इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज करेंगे। लेट्स डू इट। सो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 3, तो भाई 10/15 हो गया ये नंबर, और ये नंबर हो गया आपका 12/15। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्टेप, हमने इसको डिनोमिनेटर को इक्वलाइज कर दिया। अब ये भी 10/15 है और ये 12/15 है, दोनों का 15/15 हो गया, दोनों मेरे डिनोमिनेटर्स 15 हो गए। मतलब अब मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ। अब मुझे बोला गया है इसके बीच में एक रैशनल नंबर दीजिए, तो मेरे पास है 11/15 is the one rational number which is very easily available। लेकिन अगर हमें ये बोला जाए इनके बीच में 5 ढूंढिए या 10 रैशनल नंबर निकालिए, फिर क्या करेंगे? बहुत आसान काम है। आप किसी भी एक नंबर को ले लीजिए जिससे मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी बन जाए। उस एक ही नंबर को दोनों टर्म्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको इजी बनाने के लिए, बिल्कुल आसान बनाने के लिए मल्टीप्लिकेशन लेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 करूं, तो ये मेरा दूसरा टर्म मैं यहाँ कॉपी कर लेती हूँ। तो ये हो गया मेरा 100/150, और यहाँ पे 10 एंड 10 इज इक्वल टू 120/150। देखिए मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों टर्म्स के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब 4 हैं हमारे पास, 2 न्यूमरेटर है 2 डिनोमिनेटर है, चारों को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100/150 आ गया, ये 120/150 आ गया, राइट। अब 100 और 120 के बीच में मेरे पास 20 नंबर है, मतलब देखा जाए तो 18-19 नंबर है मेरे पास, जिसमें से मैं रैशनल नंबर बता सकती हूँ। अगर बिटवीन है तो मैं 100 को और 120 को नहीं लूंगी, इनके बीच के नंबर्स लूंगी। तो 101/150, 102/150, एंड लाइकवाइज हम जा सकते हैं 118/150, एंड लास्ट में 119/150। So this is how we can generate numbers of rational numbers। जितने भी rational number आप निकालना चाहे इस मेथड से निकाले जा सकते हैं। आई होप दिस इज वेरी इजी, वेरी क्लियर, राइट। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहे तो चलिए फटाफट से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग अ सम, अ वेरी रैंडम सम, एंड यू पीपल कैन डू इट योरसेल्फ। लेट्स से 1/2 एंड 1/3। अब इनके बीच में निकालने हैं। देखिए एलसीएम लेते हैं तो क्या हो गया 3/6, और ये क्या हो गया 2/6, करेक्ट। हमारे पास यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, और 3 2s are 6, तो ये दो टर्म आ गए 3/6 एंड 2/6। याद रखिए इसको डिवाइड नहीं करना है। कुछ बच्चे यहाँ आने के बाद फिर इसको रिड्यूस करते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे रिड्यूस करेंगे तो ये तो फिर से 1/2 और 1/3 हो जाएगा, तो ये नहीं करना है, राइट। आप इस नंबर को ऐसे ही रहने दीजिए, 3/6 एंड 2/6, करेक्ट। अब आप कोई एक नंबर ले लीजिए जिससे आप दोनों के न्यूमरेटर और दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 10 ले लेते हैं, आसान नंबर है, मल्टीप्लिकेशन फटाफट हो जाएगा। इज इक्वल टू 30/60 and 20/60. So what are my numbers now? My numbers are 21/60, 22/60, 23/60, 24/60, 25/60 till 29/60. So now we have so many rational numbers in between of any two given numbers, right? So this was a very easy method to find rational numbers. Let's see number line. Okay, very quickly, number line.
Okay, number line, though we have already done in past, this is a very, quick recap. Let's see. Here if I put some -1 sign, or let me put it -2, and then 0, -1, 1, and 2. Right? Now, make one thing very clear in your minds. If the given number, a rational number, is proper number, it's a proper fraction. Now, what is proper fraction? Your numerator is a smaller number and denominator is a greater number. Such a fraction is called proper fraction. Now, proper fractions are always smaller than 1. Do not worry, do not hesitate, you need not think over it. It is very easy. It is just to remember that any proper fraction is a part. It is not more than any whole number. So वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, वो 1 से छोटा पार्ट है. कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन अगर मैं लूँ 2/3 और मैं लूँ 5/7, तो ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन से मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डजंट मैटर. लेकिन ये दोनों नंबर्स और इस तरह के सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, वो सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस 1 और 0 के बीच में आएंगे, बिकॉज दे आर लेसर देन 1, सॉरी. या सो अगर वो पॉजिटिव है तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा. अगर नंबर नेगेटिव है तो वो 0 और -1 के बीच में आएगा. राइट? अब यहाँ पे अगर मैं लूँ 2/3, तो 0, क्योंकि ये प्रॉपर है, ये 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा. एंड इसके डिनोमिनेटर में 3 है, तो मुझे 0 और 1 के बीच में जो लाइन है उसके 3 इक्वल पार्ट्स करने. आप याद रखिए, इक्वल पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट? तो यहाँ पे मैंने 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए. आप याद रखिए, आपको डिविजन्स नहीं गिनने, आपको ये मार्किंग नहीं गिननी है, इनके बीच के गैप गिनने हैं, बीच की जगह. तो ये मेरा 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, 3 पार्ट्स मुझे चाहिए थे. ये 3 पार्ट्स मैंने यहाँ पे किए हैं. 3 मुझे क्यों चाहिए थे? क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 था. ठीक है? अब मैं 0 से काउंटिंग करूंगी. कहां तक? 2 पार्ट, क्योंकि मेरा न्यूमरेटर 2 है, तो मुझे 2 तक जाना है. 2 नंबर तक नहीं जाना, मुझे 2 पार्ट्स की गिनती करनी है. तो ये 0 से शुरू होकर के ये मेरा पहला पार्ट हो गया और ये हो गया मेरा दूसरा पार्ट. तो दिस नंबर इज 2/3. टोटल 3 पार्ट्स है, उसमें से 2 पार्ट, और गिनती आप 0 से करेंगे. ठीक है? दिस इज क्लियर? वेरी इजी सम. लेट्स टेक दिस 5/7. नाउ 5/7 इज proper fraction, so it has to be between 1 and 0. Now because it is negative, it has to be between -1 and 0. So कितना पार्ट्स लेंगे? जितने डिनोमिनेटर. कितना डिनोमिनेटर है? 7. तो इसके 7 पार्ट्स करेंगे. 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ तो मैं रैंडम कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आगे पीछे होगा. आपको बच्चों स्केल लेकर पार्ट्स करने हैं. तो ये 7 पार्ट्स हो गए. इसमें से मैं 5 पार्ट्स की गिनती 0 के डायरेक्शन से करूंगी. तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5. दिस पॉइंट इज -5/7. राइट? सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट फॉर प्रॉपर फ्रैक्शंस. नाउ इफ एट ऑल यू हैव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन व्हाट? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. सी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 के बियॉन्ड जाएंगे. दे विल रिमेन बियॉन्ड 1. सो पॉजिटिव नंबर +1 के आगे जाएगा, नेगेटिव नंबर -1 के आगे जाएगा. यहाँ पे अगर मैं ले लेती हूँ 0, यहाँ पे अगर है मेरा 1 और ये है 2, यहाँ पे है -1, ये है -2. लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. 4/3. राइट? नाउ व्हाट इज 4/3? सी, numerator is bigger number, so it is improper. Numerator is bigger and denominator is a
smaller number. It is improper. Now whenever we have improper fractions, we have always converted into a mixed fraction. So let us convert this also. How to convert? We know that, right? It is a lower standard topic. So 3 ones are 3, 3 plus 1 4. ठीक है. So ये हो गया आपका 4/3. ये हो गया उसका फ्रैक्शनल पार्ट इन मिक्स्ड फॉर्म. नाउ दिस मीन्स कि आपका नंबर जो है वो 1 से बड़ा है. 1 आ गया, ऑलरेडी 1 इज देयर. अब ये 1 से बड़ा है तो नंबर कहाँ एग्जिस्ट करेगा? 1 के बाद आएगा. 1 के बाद आएगा इस तरफ. इस तरफ तो प्रॉपर वाले का जोन है, आपको इस तरफ जाना है. अब आप जब 1 से इस तरफ जाएंगे तो कितना जाएंगे? तो देखिए 2 तक नहीं पहुंचा है. इसका मतलब नंबर कहाँ एग्जिस्ट करता है? 1 और 2 के बीच में. 1 क्रॉस हो चुका है, 1 से बड़ा नंबर है, 1 इंटीजर प्लस सम फ्रैक्शनल पार्ट. दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट 1 के ऊपर. सो 1 हो गया है, उसके बाद आपका 1/3 है. तो 1 और 2 के 3 पार्ट्स करने हैं. डिनोमिनेटर 3 है इसलिए, और उसमें से पहला पार्ट आपको सिलेक्ट करना है, दिस. सो दिस इज 1 इंटीजर 1/3 और 4/3. एंड सिमिलरली you can do it on negative side also, right? So this was number line, and the last topic for today is properties. But properties के लिए एक पूरा complete lecture चाहिए होगा. So next time we will start properties, जिसमें हम 2 चीजें करेंगे. एक होगा क्लोजर, एक होगा क्लोजरनेस क्या है वो देखेंगे कि प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है. और दूसरे कुछ नाम दिए गए हैं प्रॉपर्टीज को, उन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जिसे कहेंगे जैसे कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. और इसके साथ हम कुछ 2 आइडेंटिटीज करेंगे जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी. राइट. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन अवर नेक्स्ट क्लास. आज हमने डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, उसके एग्जाम्पल्स, रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं उसका मेथड देखा, एंड नंबर लाइन पे हमने प्रॉपर, इम्प्रॉपर, पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं ये देखा. होप this was a beautiful class and you people have learnt a lot out of it. Next class we will cover this very important part of chapter number 1, properties. and तब तक आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए. See you later on.